Hi students, how are you? Now today's topic is OC. We are we have finished the first chapter. Now second chapter is the function of management. In that planning, just now I have completed the last lecture. Today we have a good topic. The name is organization. You can say this is the second function of this is the second you can say function of management. Organizing, first of all, I will explain the meaning. In that meaning, organizing is the process of identify bringing the required resources together. See, everybody have a textbook with you, so please pay attention. I am reading the one and one line and explain you. Organizing is the process of identify. That means organizing is one of the प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जहाँ पे आइडेंटिफाई, दैट मीन्स वी हैव टू आइडेंटिटी, हमको एक पता करना है, ब्रिंग इन लेटर आना है, दैट ऑल रिसोर्सेज टुगेदर. Organization, when we come to your mind, you think about that resources. We have a 5 types of resources. I have explained previously in lecture also. Well, when we are discussing about the principle of management, man, money, market, machinery, method, these are the things of resources. Means अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो अचीवमेंट है, जो गोल्स है, उसको अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट प्लानिंग करना है. देन प्लानिंग के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको लेकर आना है. जो भी रिसोर्सेस है आपके पास, मैन, मनी, मशीन, मेथड, ग्रुप इन अरेंजिंग देम प्रॉपरली एंड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, फॉर द अचीव द ऑब्जेक्टिव. इन प्लानिंग the management decide what is to be done in future, whereas the organization function decide which way and which method you are achieving to be make the plan success. This function of important or execution of the plan which have been prepared top level by management, and these are the things, the planning which is depend upon the top level management. For that, organizing also is executed by the top level of management. So now, according to Muni Reale, one of the definition I am going to continue now. Definition. Definition में organization is the form of every human association. Organization जो है एक form है, एक every human association का for the attainment of common purpose. अब अपने business organization common purpose क्या है? To achieve the profit. उस प्रॉफिट को लाने के लिए जो भी फॉर्म बनाया गया है ह्यूमन एसोसिएशन का, उसको अटेनमेंट करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको लेकर आना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको अरेंज करना, और अरेंज करने के बाद उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना. फॉर व्हाट पर्पज? फॉर व्हाट कॉमन पर्पज, यानी सबका एक कॉमन पर्पज होता है. नाउ वी आर ऑल द टीचर्स, वी हैव द प्लान. यस, ऑनलाइन सिस्टम वी आर डूइंग बिकॉज COVID-19 गोइंग ऑन. So now it is every teacher is organizing our lectures and given by the YouTube. Some of the teacher are going for the Doodle Meet and studying online going on. Some of the teacher are giving the lectures and uploaded to YouTube channel and given to the students. This is the organization is going on. For what common purpose? Means you will get the highest and good marks in your HSC exam. This is our common purpose. So same way, we are going to importance of organization. We have a 10 points in that smart code. One smart code is there. A, B, C, D, E, F, G, H, then S, E. A, B, C, D, F, G, and then A, B, C, D, H, and then S, C, which is very alphabetical. Means A for what, B for what. This is a smart code of importance of organizing. So now, as far as organizing concerned, the grouping and assigning the organizational activity among the different
department have, we have to give the workforce also. So for that, first I is there, A for help, you can facilitate to the administration as well as operation. A for administration as well as operation. So now you know very well, whenever the business operation are there, there must be administration, and for administration whatever the required resources, with the help of required resources we have to operate, we have to execute. So the organization process lead to identify the group of the activity and grouping and assigning, grouping करके देना और उनको काम बांट के देना, एक्टिविटी टास्क एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. वेयरस प्रोसेस इन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन एक्टिविटी, जिसके जरिए अपने को प्रोसेस में मिलता है किस तरह से हम काम ऑपरेशन एक्टिविटी में ला सकते हैं. यानी ग्रुपिंग करना और काम देना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. उसके साथ में उसके प्रोसेस के प्लान को के तहत अकॉर्डिंग टू काम करना, ऑपरेशन टू एक्टिविटी करना ये ऑपरेशनल का काम है. ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में ऑपरेशन एक्टिविटी को. ड्यू टू द प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड एम्प्लॉइज देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन. इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर ऑपरेशन है, साथ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी जो है और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा और उससे वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होगा. यानी अपने यहाँ पे अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे. एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव रिलेशन ऑफ बिकम पॉसिबल. और डुप्लीकेशन यानी गलत तरीके से काम करना उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और डेलीगेशन बिकम पॉसिबल. और डेलीगेशन मतलब काम की अथॉरिटी, काम करने की क्या जिम्मेदारी इसके द्वारा दिया जाता है. यानी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. एडमिन में जैसे अभी आपको मालूम है कि 12th स्टैंडर्ड का फीस अभी कोई भरा नहीं है और अभी तक एडमिन ने डिसाइड भी नहीं किया है. जैसे ही कार्यशाला एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासकीय अधिकारी जो मैनेजमेंट टॉप लेवल बताएगा कि 12th का फीस कैसे और कहाँ भरना है, कैसे भरना है, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऑपरेशन के द्वारा किया जाएगा. सेकेंड है बी फॉर ब्रिंग स्पेशलाइजेशन. ब्रिंग स्पेशलाइजेशन. अब स्पेशलाइजेशन कैसे लेके आना है, दो स्पेशल मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी नेटवर्क है, रिलेशनशिप विद द वर्क डिवाइड इनटू द यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट. जो भी वर्क है उसको आप डिवाइड कर दो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग यूनिट में. दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प टू द स्पेशलाइजेशन. और इससे क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन आता है. जैसे कि अब हम लोग टीचर्स हैं, अलग टीचर अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, इससे क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन मिलता है. एंड द डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प, उससे क्या मदद मिलती है, स्पेशलाइजेशन मिलता है इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी. इससे एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है. तो मतलब मेरा मतलब क्या है कि अदर टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है, जो इम्पोर्टेंस है, उसमें स्पेशलाइजेशन लाना है. यानी काम को अच्छे तरीके से बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा और वर्क काम करने की क्षमता बढ़ेगी. थर्ड पॉइंट है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली. मैं ए और बी सी मतलब क्या हो गया, मैं फोर्थ वाला पॉइंट बता रहा हूँ. फोर्थ वाले पॉइंट में क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सी फॉर क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रोल ऑफ एवरी मैनेजर का. दिस कैन बी डन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाई द वे ऑफ द हैज एक्सरसाइज टू दिस पावर. अपने मैनेजर, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, आपने मैनेजर को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दिया है. अथॉरिटी दिया है तो मैनेजर क्या करेगा, एवरी मैनेजर को अथॉरिटी तो काम का अथॉरिटी दिया है तो आप काम करवा के लेगा अपने सबॉर्डिनेट से. और साथ में उसके पास पावर भी है कि वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करा के ले, और अथॉरिटी है कि काम उसको देने के पहले सोचे कि राइट पर्सन को राइट काम दिया है कि नहीं दिया है. एंड सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. इससे क्या हो रहा,
कोई भी पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, देयर शुड बी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी बैलेंस। एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो अथॉरिटी कम, या अथॉरिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यू शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। वेल डिफाइंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन बिटवीन द एफिशिएंसी। और अच्छे से जॉब कंप्लीट होता है, जवाबदारी मिलती है, तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, काम अच्छे तरीके से एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, एक इफेक्टिवली एफिशिएंसी काम दिखता है। एंड दिस हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, से अपना बिजनेस का प्रोडक्टिविटी जो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है डी, डिफाइन जॉब प्रॉपरली। Now define job properly, that is means D. D for define job properly। इसमें बताया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हेल्प टू द पुट इन द राइट मैन फॉर राइट जॉब। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पास डिफाइन है, जॉब दिया है फॉर राइट पर्सन टू राइट जॉब, सही आदमी को सही काम देना चाहिए, विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग द पीपल। और उसे सिलेक्शन करना चाहिए फॉर वेरियस डिपार्टमेंट विद देयर क्वालिफिकेशन, विद देयर इंटरेस्ट, विद देयर स्किल, with their experience। so this is a very important। हेनरी फेलो ने इस पर ज़्यादा प्रेशर किया कि ऑर्गेनाइज करते समय जब आप एक स्पेशलाइजेशन लाते हो डिवीजन ऑफ वर्क में, तो उसके बाद तुरंत जॉब का एक प्रॉपरली करने के लिए एक डिफाइन होना जरूरी है। डिफाइन करने के लिए आपको उसमें क्या करना है कि राइट पर्सन राइट जॉब देने के साथ में ये भी सोचना है कि उस पर्सन का क्वालिफिकेशन उस काम के लिए कैसा है, स्किल कैसा हो रहेगा और उसका एक्सपीरियंस कितना है। एंड दिस इज द हेल्प इन डिफाइन द जॉब प्रॉपरली विच क्लियर इज रोल ऑफ एवरी पर्सन। और इसी तरह से वो मदद मिलता है उसके काम को प्रॉपरली ढंग से करने के लिए और उसका रोल मालूम पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ई फॉर एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। कॉमन पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, आप किसी भी फंक्शन में लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेशन। ना एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि आपका जो भी काम है वो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन के साथ में चलता है। सर्टर है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को करता है क्या, कोऑर्डिनेशन। तो द फंक्शन ऑफ एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी होता है। इट क्रिएट क्लियर कट रिलेशनशिप among the position and ensure to make mutual cooperation among the individual। एक दूसरे में अच्छे से मिलजुल के काम करने की भावना। एंड कोऑर्डिनेशन और सेट्राजोनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इज इंपॉर्टेंट टू स्मूथ द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को एक दूसरे डिपार्टमेंट से और एक दूसरे डिफरेंट लेवल के मैनेजर से मिल के काम करने से क्या होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम जो फंक्शन है वो स्मूथली होगा, आसान तरीके से किया जा सकेगा, इजी वे में किया जा सकेगा और इसका रिजल्ट्स उसके प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ई आफ्टर एफ। सिक्स पॉइंट इज फैसिलिटेट, हेल्प लिखो या फैसिलिटेट effective administration। This function determine different position, department, activity and the role of clarity structured। The utmost care is taken while placing right person in the right job for right authority and responsibility। It achieved through division of work and relation of authority। This all leads to efficient effective administration। When we call the effective administration, admin हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपना जो प्रशासकीय काम है, जो कार्यशाला है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लोग बैठे हैं, उसमें मदद मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को और उसको फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर वही जो अपने 2-4 पॉइंट पहले वाले थे उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव है तो आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबका डिफरेंट पोजीशन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी होती है, एंड दैट रोल आर स्ट्रक्चर्ड एंड एवरी वन रोल इज structured। means the manager who know about the staff and top level management know about the skill of managers।
So every role are instructed. That means it is specified. And the utmost care taken by right person. And when we are taking about the utmost care, that means we are thinking about the care in nature, then we are finding out right person for right job, right authority and responsibility it is given in business organization and it achieved. उससे क्या मिलता है? डिवीजन ऑफ वर्क मिलता है, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी मिलती है. तो ये सारे चीज़ें तो हम मिलाएंगे तो हमको पता चलेगा कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव एंड अपना एफिशिएंट मैनर में है. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड जी फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. Growth and diversification. Now, growth of every organization depend upon its smooth, efficiently functioning. If the function is in good way, और अच्छे तरीके से फंक्शन अच्छा होता है तो डेफिनेटली वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होता है. एंड ग्रोथ मतलब आगे बढ़ता है. एंड क्लियरली डिफाइंड रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, personal and use of appropriate control techniques bring efficient at workplace and organization grows well. This is possible when the organization structure is well defined. तो क्या होता है कि अगर ग्रोथ दिखता है तो उससे पता चलता है कि हर एक लेवल का मैनेजमेंट की जो भी क्वालिटी कंट्रोल है, वो टेक्निक है, वो एफिशिएंट ढंग से अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे. और इससे क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है. ये तभी पॉसिबल है जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड हो रहा है, यानी प्री प्लान and organize in proper way, तो definitely उस business organization growth होगा. and if it is any changes तो diversification भी किया जा सकता है, यानी उसको changes भी किया जाता है as management think about that. That means manager will think about that yes there is we are growth is not going on, अगर हमारा business organization आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन करने का भी अधिकार किसको दिया है? मैनेजर को दिया है. Next point है and 7 point or 8 point we are writing here. Then G also translated H for help in optimum utilization of resources. Help in optimum utilization of resources. Now utilization of resources को utilize करना, ऑप्टिमम मीन बेस्ट, अच्छे तरीके से जो भी रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मार्केट, मशीनरी, मेथड, उस रिसोर्सेज को मनी तो जो भी रिसोर्स है उसको ऑप्टिमाइज मतलब बेस्ट तरीके से यूज़ करना. तो दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब एंड डिफरेंट एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग देयर जॉब स्पेसिफिकेशन. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का सबॉर्डिनेट का जॉब स्पेसिफिकेशन उसके स्किल उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाता है. एंड ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, इसलिए इसे कहा जाता है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल, तभी हर काम पॉसिबल किया जाता है. दिस राइट वर्क फोर्स यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑप्टिमम लेवल सो दैट डिजायर रिजल्ट अचीव विद इन अ डिफाइंड पीरियड. और इस तरह से राइट वर्क अगर फोर्स यूटिलाइज किया जाएगा तो जो भी रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके डिज़ायर रिजल्ट जो भी है अचीव करना विद इन अ डिफाइंड पीरियड. यानी विद इन अ डिफाइंड पीरियड मतलब अगर मैनेजर ने टारगेट दिया कि ये मंथ में अपना जो ये मार्कर पेन का प्रोडक्शन 100 होना चाहिए और अभी आज 14 तारीख है 14th, तो ना अभी अपने पास जितने भी डेज हैं उसने 100 हम करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो अपने विद इन टाइम पीरियड में यानी इस मंथ में ये अपना 100 मार्कर पेन और आने वाले 15 दिन में मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है. यानी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बनने के लिए इंक नहीं है, ऊपर ढक्कन नहीं है, ये इसका कवर नहीं है, तो ये सब रिसोर्सेज होने चाहिए जिसको वो अच्छे तरीके से यूज़ करके डिफाइंड पीरियड में यानी विद इन मंथ में जो हमने टारगेट बताया, एग्जांपल मैंने बताया कि इस महीने के अंदर होना चाहिए, तो डिफाइंड पीरियड मतलब विद इन अ गिवन टाइम ऑफ प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट इज एस फॉर स्कोप ऑफ इनोवेशन. नाउ इनोवेशन मीन्स न्यू आइडियाज. नाउ ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्लियर बताया कि जो भी रोल एक्टिविटी है तो भी परफॉर्म करना. एम्प्लॉय कैन वर्क बाय द यूजिंग दियर न्यू आइडियाज. एम्प्लॉय को अपने न्यू आइडिया से के जरिए काम करना होता है. दिस प्रोवाइड enough space to the manager to develop the talent and flourish the knowledge. और एक मैनेजर को एक
एम्प्लॉयज़ को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे एम्प्लॉय अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपना नॉलेज शेयर करता है मैनेजर के साथ। एंड दिस स्कोप ऑफ इनोवेशन, और ये न्यू आइडियाज़ जो इनोवेशन है, अडॉप्टिंग न्यू चेंज इन मेथड ऑफ वर्क इज पॉसिबल ओनली द सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है कि जो भी अदर इनोवेशन है, जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, स्कोप है, अगर एम्प्लॉयज़ शेयर करता है, वो प्लेटफॉर्म पे लाता है, तो आप उसको पूछो, आप उसका जो भी सजेशंस है वो इम्प्लीमेंट करो। एंड डेफिनेटली अगर वो अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बैठ रहा है तो उसको सेट करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओ। और लास्ट पॉइंट है create sense of security. See, it is a depend upon the set of, you can say sense of security means job security. That means organization structure जो भी clarified job position दिया जाता है, इसमें state clear duties and responsibility दी जाती है। Now I am the teacher, I am the professor, so मुझे टीचर को जॉब सिक्योरिटी क्या है कि उसको लेक्चर लेना है। अगर लेक्चर ही नहीं ले रहा तो क्या होगा, कॉलेज वाले रखेंगे ही नहीं उसको। तो लेक्चर्स लेना है, इम्प्लीमेंट करना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से रहेगा एवरीवन में, तो अकॉर्डिंग टू कोई भी जॉबलेस नहीं हो रहा। एंड क्लियरिटी इन जॉब पावर हेल्प इंक्रीज इन द मेंटल सेटिस्फेक्शन। और वो जॉब अगर परमानेंट है, टेम्प्रोरी बेसिस नहीं, परमानेंट एम्प्लॉय है, तो उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है एंड क्रिएट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। और वैसे ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो वो एक सिक्योरिटी सेंस करता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, एम्प्लॉय मन लगा के काम करेगा। मैंने कहा था ना कि अगर किसी एम्प्लॉय को अगर अच्छा सेंस सिक्योरिटी होता है और वो परमानेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, तो वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड एप्लीकेशन ऑफ हार्ट, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एप्लीकेशन ऑफ हार्ट, यानी दिल और दिमाग दोनों से मेहनत करके अच्छा काम करेगा और विद इन टाइम में अचीव करेगा गोल और रिजल्ट्स लाएगा और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लेगा। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहना जरूरी है। तो टुडे वी हैव फिनिश्ड ऑल 10 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को एक होमवर्क है, मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, इज 8 पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट्स लिख के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए या तो ग्रुप पे भेजिए तो भी चलेगा। तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट क्या होगा, अटेंडेंस में काम आएगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते नहीं हैं और भेजते भी नहीं हैं, तो इट इज़ वेरी बैड। अटेंडेंस हमारा इस कॉलेज में जा रहा है, इसलिए आप लोग लिखो और लिख के भेजो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग। तो ये आप लोग एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड करना। मेरा जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके पहले अगर 5 टाइम्स रीड रहेगा तो जब मेरा लेक्चर आप यूट्यूब का देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम एंड विश यू एवरीबॉडी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि पता है कल अपना 15 अगस्त है, तो सभी को स्टूडेंट को अपने इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।